देखा जाए और क्वेश्चन पे आया जाए पीवाईक्यूज पे। हाई कोर्ट के सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। लेकिन जो जजेस रिटायर होने के बाद जो वो मिलता है पेंशन, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ठीक, हाई कोर्ट जजेस सैलरीज आर ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मेंटेनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिड्यूसिंग एक्सिक्यूटिव interference. In contrast, Supreme Court judges' salaries come from Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India, Article 266, used for central expenses including Supreme Court judges' salaries. Contingency Fund of India, 267 of India State, used for emergency expenditure, not for regular salaries. ये राष्ट्रपति जी के उसमें होता है, लेकिन बाद में वो लेजिस्लेचर से परमिशन लेनी पड़ती है। Financial independence of the judiciary remains crucial to maintain the separation of power. Recently, there have been debates about increasing judges' salaries to attract talented legal professionals. NGAC Judgment 2015 reaffirmed the financial autonomy of the judiciary is integral to judicial independence. The pension of the retired judge of the Supreme Court is charged to the Consolidated Fund of India. According to Article 112(3)(d) of the Indian Constitution, the pension of the retired High Court judge is drawn from Consolidated Fund of India. Salaries and allowances, however, are charged to the Consolidated Fund of the state as per Article 202(3)(d). This bifurcation ensures the central government bears the post-retirement expenses, maintaining uniformity. ठीक, स्टेट से सैलरीज मिलती है लेकिन पेंशन इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक, जुडिशियल पेंशन हैव इमर्ज्ड ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ इनहेंस्ड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर जजेस, स्पेशली अट्रैक्ट एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट टू जुडिशियल सर्विसेज। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ये क्या 62 ईयर्स है। ठीक, 62 मतलब 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। देखिए, रिटायरमेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट जज वाज 60 years initially, but it was raised to 62 years by 15th constitutional amendment 1963. There is a proposal to increase retirement age to 65 through 114 constitutional amendment, but it is yet to be passed. मतलब अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी 65 नहीं हुआ है। ठीक, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65 है, नॉट हाई कोर्ट जजेस। 1963 से पहले था, लेकिन अब 1963 के बाद 62 है। ठीक, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ए हाई कोर्ट जज 62 years. एज पर आर्टिकल 217(1), ए हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट 62 years. ठीक, दिस प्रोविजन इंश्योर दैट जजेस हैव एडिक्वेट टेन्योर टू डिलीवर कंसिस्टेंट जजमेंट व्हाइल स्टिल अलाइंग रूम फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स. Recently, there have been discussion on increasing the retirement age to align with Supreme Court Judge 65 years, addressing issues to judiciary vacancies. 104th Amendment Bill aiming to raise the age to 65 is pending. अभी pending है. Consider the following statements. There are 25 high courts in India. सही है. पंजाब, हरियाणा and Union Territory of Chandigarh have common high court. सही है. National Capital Territory of Delhi has a high court of its own. सही है, तीनों सही है. As of now, there are 25 high courts in India, some having jurisdiction over more than one state UT. Punjab, Haryana, Chandigarh share a common high court located in Chandigarh. Delhi has its own high court established in 1966. Jammu and Kashmir के पास भी अपना high court है, territory. The newly created Union Territory of Ladakh currently falls under jurisdiction of Jammu and Kashmir High Court. ठीक है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबारी, अंडमान एंड निकोबार कहाँ आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार, कलकत्ता हाई कोर्ट हैव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. हिस्टोरिकली बीइंग ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड कलकत्ता का 1862 में. इट हैड जुरिस्डिक्शन ओवर नियर बाई टेरिटरी इंक्लूडिंग आइसलैंड्स. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों का है. मद्रास, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, मैसूरू, कर्नाटक. उड़ीसा, जुरिस्डिक्शन ओवर उड़ीसा. नंबर आंध्र प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी.
पुडुचेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी याद रहे एकदम, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया 25, करेंटली 25। देखिए अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद भी स्टेट्स बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड लद्दाख स्टिल शेयर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अच्छा, दिल्ली नहीं, गुजरात, बॉम्बे का है, बॉम्बे हाई कोर्ट। महाराष्ट्र एंड गोवा, बॉम्बे हाई कोर्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा एंड यूनियन टेरिटरी दमन, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये तीनों का है, ठीक। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। द jurisdiction over multiple state and UTs is designed for administrative convenience and efficient justice delivery. Allahabad limited to UP, Delhi jurisdiction confined to national capital territory of Delhi, Gujarat jurisdiction limited to the state of Gujarat. With merger of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu as a single UT in 2020, the Bombay High Court still retains jurisdiction. High Court विथ जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा, तो हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? देखिए द 3 हाई कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट्स, गुवाहाटी, अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मिजोरम। अभी अगर डाटा देखें तो 4 हम लोग मानेंगे, 4 भी नहीं। अच्छा, स्टेट्स की बस बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो गुवाहाटी, अरुणाचल, असम, नागालैंड और मिजोरम है। हाई कोर्ट्स दैट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, गुवाहाटी जुरिस्डिक्शन ओवर अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मिजोरम। बॉम्बे जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक। गुवाहाटी, बॉम्बे और पंजाब। गुवाहाटी हाई कोर्ट वाज इनिशियली द ओनली हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, लेकिन 2013 के बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भी बन गए हैं, ठीक। कहाँ मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में। और अब गुवाहाटी में अरुणाचल, असम, नागालैंड और मिजोरम 4 राज्य इसमें आते हैं गुवाहाटी में, ठीक। इंडियन स्टेट्स विदाउट ऑन हाई कोर्ट, जिनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, ठीक। तो इसमें मणिपुर, लेकिन मणिपुर का तो बन गया है, अब इसमें किसी का नहीं है, ठीक। अब मणिपुर का तो हो गया है, उड़ीसा का भी है, सिक्किम का भी है, हिमाचल का भी है, मणिपुर का भी है। एट द टाइम ऑफ मणिपुर डिड नॉट हैव इट्स ओन, वाज अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट, लेकिन अब 2013 में हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2013, in which of these states high courts were established in March 2013? तो त्रिपुरा में और मेघालय में, मेघालय और त्रिपुरा में बने। हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2013, मेघालय हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट। तो 3 नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। These were created to reduce the workload of Guwahati High Court and provide better access to justice. Which of the following high courts had largest number of benches? तो बॉम्बे एंड गुवाहाटी का अरुणाचल प्रदेश, देखिए बॉम्बे का कहाँ है, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में है। बॉम्बे का नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में है। गुवाहाटी का कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर, कोहिमा नागालैंड, ऐजवाल मिजोरम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। हाई कोर्ट्स ऑफ मल्टीपल बेंचेस फैसिलिटेट रीजनल जस्टिस।
देखिए गुवाहाटी तो है ही, फिर कोहिमा नागालैंड में है, ऐजवाल मिजोरम में, और ईटानगर अरुणाचल में। मिजोरम ईटानगर अरुणाचल, ऐजवाल मिजोरम, कोहिमा नागालैंड। बोथ हाई कोर्ट्स हैव 3 benches each. Jurisdiction, अच्छा, which one of the following is not the main jurisdiction of High Court of a state? एडवाइजरी ओरिजिनल है, सुपरवाइजरी भी, एपिलिएट भी है, ठीक, लेकिन एडवाइजरी नहीं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज ए फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, वेयर प्रेसिडेंट में सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। High Court do not possess this jurisdiction. Original jurisdiction include matter like writ petitions, ठीक। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो रिट पिटिशन होता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इंक्लूड सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व हियरिंग अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, खुद की भी अपील वो एक्सेप्ट कर सकता है। Administrative capacity of Chief Justice, which when the Chief Justice of a High Court act as an administrative capacity, he is subject to the writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court. बिल्कुल सही है। The writ jurisdiction of any of the other judges which of the court, when the Chief Justice of High Court acts in an administrative capacity, he is subject to द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। तो ये कैसे? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज कैन स्टिल बी क्वेश्चन अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन, वो कभी तब भी जो है क्वेश्चन किया जा सकता है ऑफ एनी अदर जज ऑफ सेम हाई कोर्ट। दिस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड अवॉइड्स द मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। Judicial independence. Chief Justice administrative actions must comply with the constitution and judicial norms. अब देखिए, स्पेशल कंट्रोल exercised by the Chief Justice of India. CJI supervises judicial but not administrative function. Discretionary power of governor. Governor does not interfere in judicial administration. Special power provided to chief minister in this regard? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Which of these statements regarding the High Court in India is true? There are 18 High Courts in the country. नहीं, 25 है। 3 of them have jurisdiction over more than one state. स्टेट की बात है तो हाँ ये है, ठीक है। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, बिल्कुल सही है, ठीक। As of now, there are 24 high courts in India. Number has increased over the year as new state and union territories is created or reorganized. जैसे हाई कोर्ट ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा were established in 2013, ठीक। At the time of question, number of high courts was 21, making this incorrect. अभी क्या है? 25 है, ठीक। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में बने, और गुवाहाटी का अरुणाचल, मिज़ोरम और किसका है? अरे यार, गुवाहाटी, मिज़ोरम और अरुणाचल। अरे रे कंफ्यूज हो गया मैं। मुंबई का नागपुर, औरंगाबाद, पणजी था। गुवाहाटी का नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल। नागालैंड कोहिमा, ऐजवाल मिज़ोरम और ईटानगर अरुणाचल, ठीक। 3 of them have jurisdiction over more than one state, ठीक है। बॉम्बे, पंजाब एंड हरियाणा एंड गुवाहाटी। बॉम्बे का महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। पंजाब का पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। गुवाहाटी जुरिस्डिक्शन ऑफ अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक। अरुणाचल, असम, ठीक। नाउ रिड्यूस्ड आफ्टर क्रिएटिंग सेपरेट हाई कोर्ट इन 2013। नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। दिल्ली है, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, हाँ बिल्कुल, 1963 के बाद 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट बिल हैव नॉट बीन पास्ड, नहीं तो उसके बाद वो 65 के हो जाएंगे लोग, ठीक। द रिट कैटेगरी इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट, मतलब सुपीरियर कोर्ट के द्वारा ये किया जाता है कि आप अपना केस मतलब मुझको दीजिए।
to an inferior court to transfer the record of proceeding in a case for review. The writ of certiorari is issued to by a superior court like High Court or Supreme Court to lower court or tribunal to transfer the records of case to itself for review. The purpose is to correct errors of jurisdiction or fundamental procedure errors. It is generally issued after the case has been decided to quash the order if found unlawfully. To further stop proceeding, this is related to prohibition. Writ of prohibition. Prohibition. To show the right to office quo warranto. To produce a detained person habeas corpus. In recent judicial intervention, Supreme Court used certiorari to quash decision made by quasi-judicial bodies for exceeding their jurisdiction. ठीक, तो यही हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू, बाय बाय. बाकी अगले मिलते हैं.